और सेकेंडरी रेडिएशन, तो उसकी पावर कम रहती है और बहुत बार क्या होता है वो मटेरियल को पेनिट्रेट नहीं कर पाती, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी आर गेटिंग द पुअर इमेज। ठीक है, remember also that the intensity of X-ray beam is related to the number of X-ray rays striking per unit area in a given length of time. Intensity of X-ray beam is changed with either voltage or anode on the current or the filament is changed. The generation of X-ray is very inefficient process. क्या बताया था मैंने? एक्सरे जनरेशन का जो प्रोसेस है बहुत ही इनएफिशिएंट है, बहुत लो प्रोडक्टिविटी है। Only fraction of electron striking the target will actually produce the X-ray. Most of energy of speeding electron is converted into heat at the target material. The heat must be removed by proper cooling and observing duty cycle. ठीक है, अभी इक्विपमेंट के बारे में डिटेल। तो इक्विपमेंट में मेन 3 सर्किट रहते हैं। इक्विपमेंट में मेनली 3 सर्किट रहते हैं अपने। ठीक है, यह पावर ऑन सर्किट है, दिस इज पावर ऑन सर्किट। ये हमारा फिलामेंट है, ये फिलामेंट का सर्किट है, और फिलामेंट में और टारगेट के बीच में पोटेंशियल लगाने का सर्किट ये है। इससे क्या होता है, अपना पेनिट्रेशन पावर हम कंट्रोल करते हैं। ये अपना यहाँ से अपन कंट्रोल करते हैं इसको कम। जैसे अपना आपने देखा होगा अपन कॉलेज में ऑटो ट्रांसफार्मर देखा था या रियोस्टेट देखा था। रियोस्टेट उससे कैसा होता है, वोल्टेज 0 से 440 वोल्ट तक जाते हैं अपन उससे, तो सेम चीज इसमें रहती है। ठीक है, sharpness of radiographic image is partly determined by the size of radiation source, UG equal to FT by D। जितना छोटा फोकल पॉइंट रहेगा आपका उतनी हाई क्वालिटी की इमेज आएगी। ठीक है, यूजुअली टारगेट इज सेट एन एंगल टू द प्रोजेक्टेड size of bombarded area is smaller than the actual focal. The size of focus is limited by the heat generated at the target bombardment. X-ray can be generated that radiate almost in all direction. The direction is determined by the target position in the anode and placement of shielding material in the tube. The majority of X-ray equipment in the industrial radiography use iron core transformer to produce the required high voltage. Usually 3 transformers are required. Auto transformer which furnish 110 volt to the filament at high voltage, at a high voltage transformer, step up transformer or potential transformer, and step down transformer or filament transformer। ठीक है, अपने को ज़्यादा इलेक्ट्रिकल से कंसर्न नहीं है। ठीक है, अपने को सिर्फ इसका फंक्शन आना चाहिए। इलेक्ट्रिकल क्या होता है वो कोई पूछेगा नहीं आपसे अंदर। ठीक है, सिर्फ बेसिक मालूम होना चाहिए कि टारगेट क्या रहता है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कहाँ से एनर्जी बढ़ती है, मल्टीप्लाई होती है, वो मालूम होना चाहिए। अपने को फंक्शनिंग इसका पूरा आना चाहिए। ठीक है, iron core transformers are used to produce the voltage up to 400 kV, high voltage X-ray and electrostatic generator. An X-ray generator, there are two main methods of rectification and alternating current: self-rectification and rectifying tube. Self-rectification is simplest method of rectification. A cable used with the X-ray tube having anode that is much cooler than the anode. This shown below, the electron will be accelerated from the hot cathode during the cycle, and when current on anode is positive during the half, अभी मिस क्या हो गया, आपने हाफ वेव डीसी दिया इसको। During the half cycle, when anode is negative, no electron is emitted, therefore X-rays are produced only in half time. The self rectification or X-ray tube are usually take tank type units similar to shown below. The rectifying tube utilizes either half wave rectification or full wave rectification. Half wave rectification as shown below is most efficient and self rectification, but still disadvantage of current flowing in half time only। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है वो, अपने को ड्यूटी साइकिल तो ऑब्जर्व करना है। ठीक है ना, तो क्या होता है वो बोल रहा है, यदि कभी अपन ने हाफ वेव डीसी यूज किया तो क्या होता है हाफ वेव डीसी, देखो इसको बोलते हैं एसी करंट। ठीक है, हाफ वेव डीसी किसको बोलेंगे हम, यदि हमने
इसको निकाल दिया। इसको बोलेंगे हाफ यूडीसी। तो क्या हो जाएगा इसमें, आपको एक्सरे मिलेगी यहाँ पे, दिस इज एक्सरे, ये कूलिंग, फिर एक्सरे, फिर कूलिंग। तो ऑटोमेटिक कूलिंग हो रही है, इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, और कंटिन्यू एक्सरे मिल रही है आपको। ठीक है, तो इसका ये एडवांटेज बोल रहा है वो। हम्म। ये अभी इंपॉर्टेंट हो गया इक्विपमेंट के बारे में। तो इसमें है ना, मशीन में ये सिंपल कंट्रोल रहता है। इसको मशीन को ऑपरेट करना बोलो तो हैंड ड्रिल मशीन ऑपरेट करना वैसा है, इतना सिंपल है। ठीक है, इसमें सबसे पहले होता है कंट्रोल पैनल, इसको ऑन करना है। जैसे ऑन करोगे साइकिल ऑन हो जाएगा, अपना पूरा मशीन रेडी हो जाएगी। ठीक है, मशीन रेडी हो गई, फिर बाद में आपको करंट सेट करना है। तो अपना इंडिया में जितना भी मशीन आता है उसमें सिर्फ 5 एम्पियर ही रहता है, मिली एम्पियर। तो ये आपके हाथ में सेटिंग नहीं है, ये सेटिंग फ्रीज हो गई है। लेकिन आपने कभी जी का मशीन लिया तो 2 सेटिंग रहती है उसके अंदर, 5 मिली एम्पियर और 10 मिली एम्पियर। 5 मिली एम्पियर लगाओगे तो आपको 5 मिनट लगेगा, 10 मिली एम्पियर लगाओगे तो आधा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी एक्सरे की। ठीक है, और ये है केईवी। केईवी सेट कैसा करोगे आप, मशीन पे ऑलरेडी डायग्राम दिया है उसने, थिकनेस के हिसाब से कितना केईवी लगाना क्या रहता है ये। मैं वापिस जाता हूँ एक बार पीछे। मशीन के कवर पे ऐसा एक डायग्राम आपको मिल जाएगा। यहाँ पे थिकनेस रहेगी, यहाँ पे रहेगा केईवी, और यहाँ पे सेंटर में एक रेड कलर का लाइन रहेगा ऐसा। ठीक है, यहाँ पे जाओगे आप 10 mm में जाओगे तो आपको लगाना है 75 केईवी। 15 mm में जाओगे आपको लगाना है 150 केईवी। और आगे जाओगे 20 mm में जाओगे 175 केवी। इधर इधर जाओ, रीडिंग आपको क्या करना है, थिकनेस देखना है आपकी, उतना केवी लगा देना है बस। तो ये हो गया। ठीक है, तो ये आपको केवी लगा दिया आपने। अभी आपके पास क्या बचा है, डी। डी कहां से निकालोगे आप, यूज इक्वल टू एफ टी बाई डी, वहां से डी निकाल लेंगे। अभी क्या चाहिए, अब टाइम। टाइम कहां से निकालोगे, टाइम तो मालूम होना चाहिए ना आपको। आप अभी बॉस बनने वाले हो रेडियोग्राफर के, तो आपको टाइम निकालना मालूम होना चाहिए। तो टाइमिंग निकालने के लिए बहुत सारा मेथड है। ठीक है, सबसे इजी मेथड है अपने स्मार्टफोन में, ये है क्या बोलते हैं, ये ऐप स्टोर है। ऐप स्टोर में जाओ, वहां पे आगे जाके डालना है अपने को क्या, एक सेकंड बोलता हूँ यार, भूल गया नाम उसका, मैं बहुत दिन से वापरा नहीं उसको, एक्सपोजर कैलकुलेटर। ठीक है, बहुत सारा कैलकुलेटर आएगा, आपको जो चाहिए वो डाउनलोड कर लो। मेरे पास है अभी अल्फा कंपनी का, ALPHA, अल्फा NDT का है मेरे पास। इसमें इसका भी आता है अपना, किसका, जी का भी आता है। ठीक है, जी का भी आता है, जी का कैलकुलेटर ले लो, किसी का भी ले लो। ठीक है, तो कैलकुलेटर डाउनलोड करना है अपने को, और फिर अपने को कैलकुलेटर खोलोगे तो खोलते से ही आपको पूछेगा वो, आपको एक्सरे में करना कि गामा में करना है। आपने सपोज एक्सरे दबा दिया तो पूछेगा मटेरियल कौन सा है,
आपसे वो कैलकुलेटर पूछेगा, पहला पॉइंट पूछेगा मटेरियल क्या है आपके पास, किसका आरटी करना है आपको, तो आपको डाल दो जो मटेरियल रहेगा, कार्बन, स्टील, एल्यूमिनियम। ठीक है। नेक्स्ट पूछेगा आपको थिकनेस, क्या मटेरियल का थिकनेस है, वो डालो, आपको डालना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है वो डी, डी कितना रखा आपने, थर्ड। फोर्थ पूछ रहा है कैलकुलेटर डेंसिटी कितना चाहिए, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, डिग्री ऑफ ब्लैकनेस, कितना फिल्म काला चाहिए आपको। तो अपने को एक्सरे के लिए ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का। एक्सरे के लिए अपने को 1.824 चाहिए डेंसिटी, और गामा के लिए 224। ठीक है। तो अपने को हमेशा डेंसिटी सिलेक्ट करना है कैलकुलेटर पे 2.5 एवरेज, उसका यूनिट है, इट इज अ रेशो, रेशो डजंट हैव एनी यूनिट। ठीक है। फिर केवी, क्या बोल रहा है अगला, अगला पूछता है कितना केवी लगाने वाले हो आप, वो तो मशीन पे लिखा हुआ है आपको मालूम ही है। फिर अगला पूछ रहा है कितना एमईवी लगाने वाले हो, मिली एम्पियर, वो भी आपको मालूम है। ये डालोगे, जैसे ही बटन दबाओगे टाइम बोल देगा वो। ठीक है। तो मैं कभी कर रहा हूँ मेरे कैलकुलेटर के ऊपर, इसमें भी इसमें आता नहीं है। थिकनेस में डाल रहा हूँ 10 mm, एसएफडी डाल रहा हूँ मैं 200 mm, डेंसिटी फिल्म यूज कर रहा हूँ मैं D7, डेंसिटी 2.5, केवी मेरी 150 डाल रहा हूँ मैं, मिली एम्पियर पॉइंट डाल रहा हूँ, कैलकुलेटर 19 सेकंड, 19 सेकंड में मेरा काम खत्म हो जाएगा रेडियोग्राफर का। इसमें अलार्म भी है, आप बटन दबा दो ऑन, ऑटोमेटिक अलार्म चालू हो जाएगा इसका, और ये बजता भी है साथ में, तो आप मशीन बंद कर सकते हो उस टाइम। ठीक है। तो ये आपको ऐसा काम करना है, इसमें सब कुछ आपके हाथ में, देखो कुछ भी आपको ऐसा नहीं है, नया नहीं है, आपको सब कुछ मिला मिला है इसके अंदर। ठीक है। क्या बोल रहे हैं, हाँ ये मिनट से। ठीक है। ऐसा मशीन रहता है, ऐसा कंट्रोल रहता है उसका। ठीक है। हर मशीन तो मशीन डिपेंड करता है। ये एक्सरे ट्यूब रहता है, एक्सरे ट्यूब जहां आरटी करना वहां रहेगी, कंट्रोल बाहर रहेगा आपके पास। Unlikely gamma rays X-rays are produced by the X-ray generator, and these systems typically include the X-ray tube, high voltage generator and control console. ठीक है। अभी हमारा जो नॉर्मल एमआईडीसी में अपना पूरा इंडिया में अपने को, देखो मैं एक आपकी इम्पोर्टेंट पहले एक काम करता हूँ, आई विल गो ऑन व्हाइट बोर्ड, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज एक्सप्लेन करता हूँ मैं। जब भी आपके पास चॉइस है, एक्सरे लेना है कि गामा लेना है, हमेशा एक्सरे सिलेक्ट करो। क्यों, एक्सरे एक्सीलेंट बेस्ट आंसर, इट इज कंट्रोल्ड एनर्जी। इससे क्या एडवांटेज आएगा आपको, कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं कॉन्ट्रास्ट एक्सरे में क्यों अच्छा आता है। ठीक है। कॉन्ट्रास्ट अच्छा क्यों आता है मैं आपको बता रहा हूं, है नितिन महामुनि, आपका क्वेश्चन का आंसर आ रहा है अभी ये। ठीक है। यस सर। एक, हाँ ऐसा एक जॉब है, ठीक है, इसका थिकनेस ये 6 mm है, ये 6 mm है, ये 6 mm है, और ये 6 mm है, यहाँ पे 12 mm है, ये 12 mm है। ठीक है। मैं इसको कर रहा हूं, ये भी सेम है, हाँ ये भी सेम है, ये मैं कर रहा हूं एक्सरे से, इसको कर रहा हूं मैं इरिडियम 192 से।
ठीक है। मैंने एक्सरे का ऐसा एनर्जी लिया जिसका हाफ वैल्यू लेयर 6 है। ये मेरे हाथ में सिलेक्ट करना। तो मैंने यहाँ पे 100 रेज दिया, यहाँ आके 50 हो गया, यहाँ आके 25 हो गया, यहाँ आके 12.5 हो गया, यहाँ पे हो गया 6.3। यहाँ पे मेरा 100 आया, यहाँ पे 50 आया, यहाँ 25 आया। तो 6.3:25 क्या रेशियो हो गया मेरा? 1:4। मेरा कॉन्ट्रास्ट कैसा आएगा इसमें? 1:4। ठीक है। अभी अपन जाएंगे इरिडियम पे। इरिडियम की पावर आप कंट्रोल कर सकते हो? नो, इसका पावर फिक्स है। क्या फिक्स है? 75 mm ऑफ स्टील। इसका हाफ वैल्यू लेयर 12 mm है। यहाँ पे 100 दिया, 50 मिला, यहाँ पे 25 मिला, यहाँ 100 दिया, यहाँ 50 मिला। तो कॉन्ट्रास्ट क्या आएगा आपका? 1:2। बहुत खराब। जब आप इरिडियम से रेडियोग्राफ करते हो तो डिफेक्ट देखने के लिए आपको बहुत आंख फोड़ फोड़ के बोलते ना, तब जाके दिखता है डिफेक्ट। बहुत ऐसा देखोगे, गड़ा गड़ा के देखोगे आंख को, तब दिखेगा डिफेक्ट। लेकिन एक्सरे का रेडियोग्राफ आपको बच्चा भी देख के बोलेगा कि इसमें डिफेक्ट है, इतना क्लियर रहता है। तो कभी भी आपको जब भी चॉइस रहे हाथ में आपके, ऑलवेज गो विद द एक्सरे, नेवर गो विद द इरिडियम। ठीक है। इससे आपको कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा मिलता है एक्सरे से। लेकिन एक्सरे में थोड़ा गड़बड़ होता है कभी कभी। इसकी पावर क्या रहती है? बैंड में आती है 80 to 120। तो जो 80 वाली आती है उससे अपना कॉन्ट्रास्ट क्या बोलते हैं, शार्पनेस खराब हो सकती है। यदि आपको लग रहा है कि ब्लर इमेज आ रही है, थोड़ी शार्पनेस खराब हो रही है, थोड़ी सी एनर्जी बढ़ा दो। ठीक है। क्लियर? आपको आंसर मिला आपका क्वेश्चन का नितिन? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल दे के बताया। ठीक है। अभी इसमें प्रेजेंटेशन में एग्जांपल नहीं है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझना। ठीक है। तो अभी अपन देखेंगे ये। अभी क्या है, इसके बाद हम पढ़ेंगे हाई, जो अपना नॉर्मल एमआईडीसी में, जो नॉर्मल एमआईडीसी में अपना जो एक्सरे का मशीन है वो 30 mm तक चलता है बस। लेकिन 30 mm के बाद में अपने को नहीं मिलता है, क्योंकि क्या होता है, 30 mm के ऊपर आप गए ना तो एक्सरे मशीन का कीमत करोड़ में रहता है। तो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और जो अपना इरिडियम 192 है उसका कीमत 6 लाख रहता है। तो 6 लाख किधर, 75 mm तक काम कर रहा है ये, और आपको 30 mm के ऊपर 1 करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ेगा। तो इसलिए कोई भी पैसा डालता नहीं है, क्योंकि कस्टमर ही पे नहीं करता है ना। कस्टमर पे नहीं करेगा तो कोई डालेगा नहीं पैसा। लेकिन आपका कोई कस्टमर है, वो बोलता है कि मेरे को मेरा जॉब एक्सरे से ही करना है, तो उस टाइम जो मशीन मिलती है उसका नाम है बेटाट्रॉन एक्सेलरेटर और लीनियर एक्सेलरेटर। ठीक है। यह मशीन इंडिया में सिर्फ एलएनटी के पास है, मेरे पास था यह मशीन। ठीक है। उसके अलावा कहीं भी नहीं है ये। उनकी एलएनटी में ये 5 बेटाट्रॉन एक्सेलरेटर है और एक लीनियर एक्सेलरेटर है। इससे 1 मीटर तक थिकनेस तक की आप आरटी कर सकते हो। यदि मेटल का थिकनेस, वेल्डिंग ज्वाइंट का थिकनेस 1 मीटर है, 1 मीटर तक की भी आरटी कर सकते हैं। ठीक है। तो स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक एक्सेलरेटर हैव बीन डिजाइन्ड टू प्रोवाइड द वेरी हाई एनर्जी एक्सरे। Betatron accelerator uses the magnetic induction type of electrical accelerator. X-ray tube is donut shape and is located between the pole of large magnet. Electrons are ejected into the tube and they cause the circular with the tube in the magnetic field. इसमें क्या होता है, राउंड शेप का एक असेंबली रहता है और उसके दोनों तरफ मैग्नेट लगा रहता है। तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो पूरी ताकत से घूमते हैं, और जब अपने को लगता है कि उसकी स्पीड सफिशिएंट हो गई जितनी अपने को एक्सरे चाहिए, तो उसको टारगेट पे छोड़ देते हैं।
जब इतना पावर का इलेक्ट्रॉन टारगेट में जाके टकराता है तो अपने को इतनी एनर्जी देता है कि आप 400 mm 500 mm तक का पेनिट्रेशन पावर डेवलप कर लेते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटाट्रॉन एक्सेलरेटर। और दूसरा आता है लीनियर एक्सेलरेटर। इसमें क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेटर में एक गाइड वेव रहता है, एक वेव्स रहता है, उसको गाइड वेव बोलते हैं। उसकी वेलोसिटी हम चेंज कर सकते हैं हमारे हिसाब से, जितना अपने को पेनिट्रेशन पावर चाहिए वो हिसाब से उसका स्पीड चेंज कर सकते हैं। तो क्या करते हो, गाइड वेव के ऊपर इलेक्ट्रॉन को बिठा देते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन बैठा तो वो स्पीड चलता है वो, और जाके टकराता है उससे टारगेट से सीधा। तो ये इसको बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेटर। ठीक है, uses high frequency wave and waveguide to accelerate the electron toward the target. The range is energy from 5 MeV to 25 MeV, can penetrate more than 16 inch of steel. अभी गामा रेज इक्विपमेंट के क्या क्या फायदे हैं वो देखेंगे हम। ठीक है, there are two radioactive isotopes that are generally used in the industry. Cobalt 60 is an artificial isotope with the half-life of 5.3 years, and iridium 192 with the artificial isotope with the half-life of 75 days. Other isotopes which may be used sometime, radium 226 is a natural isotope with the half-life of 1600 years. Cesium 137 is the half-life with the 30 years, and Thulium 170 is the artificial isotope with the half-life of 130 days. Isotopes are source of gamma rays, but X-ray and gamma rays of the same energy are exactly same. Following are the list of commonly accepted advantage of isotope. अभी क्या क्या advantage है isotope के?